اردو میں افسانچے کی روایت میں عظیم راہی لکھتے ہیں کہ افسانچہ ادب کی وہ نثری صنف ہے جس میں کم سے کم الفاظ میں ایک طویل کہانی مکمل کر لی جاتی ہے۔ میرے خیال میں اس سے بہترین تشریح ممکن نہیں۔ نئے لکھنے والے اس نقطے کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ اب چلتے ہیں اس بار کے منتخب افسانچوں کی جانب۔ نعرہ سلمیٰ صنم کا افسانچہ سنو۔ وہ بہت بڑی شاعرہ تھی، حقوق نسواں کی دائی اور علم بردار۔ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے کے لیے وہ پوری ادبی دنیا میں مشہور تھی۔ عالمی یوم خواتین کے دن اپنے کچھ بال جو اس نے کینسر کے مریضوں کی ویگیں بنانے والے ادارے کو عطیہ کیے تو اس کے گھر میں طوفان آ گیا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ساس چلائی۔ عورت کا اصل حسن اس کے بال ہیں۔ ایسی چیز کیوں ڈونیٹ کر دی بھابھی جو واپس مل جاتی ہے؟ نند نے تانا مارا۔ اس کی جگہ اپنی کڈنی دان کیوں نہ کر دی؟ کس کے حکم پر تم نے اپنے بال کٹوائے؟ شوہر دہاڑا۔ میری مرضی کا نعرہ اس کے اندر پگھلنے لگا۔ اور اب سنتے ہیں محمد علیم اسماعیل کا افسانچہ نیک کام۔ علی اسماعیل کا شمار بھارت کے بڑے افسانچہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ بہت تھوڑے عرصے میں انہوں نے عروج پایا، اوج پر چمچما رہے ہیں۔ ان کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے نیک کام۔ ملک کے پردھان منتری نے اعلان کیا، آج آدھی رات یعنی 8 نومبر 2018 کی رات 12 بجے سے حال میں جاری 500 اور 1000 کے کرنسی نوٹ لیگل ٹینڈر نہیں رہیں گے، یعنی یہ کرنسی قانوناً منظور نہیں ہوگی۔ 500 اور 1000 کے پرانے نوٹوں کے ذریعے لین دین کی سہولت آج آدھی رات سے دستیاب نہیں ہوگی۔ ٹی وی پر یہ خبر سنتے ہی رام لال جی کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھوں میں ایک تھیلا تھمایا اور کہا، جاؤ اسے گنگا میا میں بہا کر گنگا میا کو خوش کر دو۔ بیٹے نے دیکھا تو پورا تھیلا 500 اور 1000 کے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا، جلد کسی کو 1 روپیہ نہ دینے والے ہمارے بابو جی کتنے نیک اور مذہبی انسان ہیں۔ اب رام لال جی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ نوٹ بندی کے اعلان کے بعد وہ جعلی نوٹوں کو لے کر بڑے پریشان تھے۔ محمد علیم اسماعیل کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے خاموش دھماکہ۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر بتر تھی۔ اب یہاں کس لیے آئی ہے؟ ہمیں تجھ سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ کتنی ذلیل حرکت کی ہے تو نے۔ اب ہمارا تجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ خدا نے ہمیں اولاد کی خوشی سے محروم رکھا، اس لیے کتنے ارمانوں سے تجھے گود لیا تھا ہم نے۔ اب یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں،
जा वहीं उसके पास जिसके साथ मुंह काला किया है। चची ने चीखते हुए गुस्से से कहा, इसलिए तो यहाँ आई हूँ चाची। उसके एक कोने में सहमे हुए खड़े चाचा की तरफ देखकर कहा। अगर आप अफसानचे पसंद करते हैं तो इसकी तरक्की की भी कोशिश करें, खुद भी लिखें, दूसरों को भी तरगीब दें। ये चैनल अफसानचे की आबियारी के लिए बनाया है। इसके सब्सक्राइबर जरूर बढ़ाएं ताकि ज्यादा लोगों तक अफसानचा पहुंच सके। अफसानचे मुकम्मल सुने और फिर कमेंट बॉक्स में तबसरा भी करें। आइए परवेज अनीस का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है हद। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वो खुशी घर आई और सीधा अपने कमरे में चली गई। उसने सुर्ख रंग का एक खूबसूरत गाउन जेब तन किया और होठों पर सुर्ख लिपस्टिक लगाकर आदम कद आईने के सामने खड़ी हो गई। सर से पांव तक अपना जायजा लिया। अचानक उसे अपने बचपन का एक वाकया याद आ गया। उसके होठों पर फैली मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो 10 साल की थी जब अपनी बहन के कपड़े पहने और उसकी सुर्ख लिपस्टिक लगाकर खुद को इसी तरह आईने में देख रही थी। उसकी माँ ने उसे देख लिया और पूरा घर सर पर उठा लिया। बाबा ने उसे बहुत मारा। बाबा मारते रहे और चिल्लाते रहे, आज तो तूने हद ही कर दी। बेटा राहुल, ऐसा क्यों किया? इस बार महाना निशिश बजाय किसी होटल के हॉल में मुनाकिद करने के जनाब इकबाल वफा के दौलत कादरी पर मुनक़िद हुई। महफिल में सुनाए गए अफसानचों में से 3 अफसानचे आप भी मुलाहिजा करें, बकिया किसी और वीडियो में सुना दूंगा। अफसानचे का कोई उन्वान नहीं है, नाम कुछ नहीं दिया मैंने। अफसानचा कुछ यूँ है, वो मेरा दोस्त था मगर सच्चा आशिक़ रसूल था। उसके साथ बैठकर मुझे बात करने में काफ़ी एहतियात से काम लेना पड़ता था। मुझे इससे बज़ाहिर बहुत खौफ महसूस होता था। बज़ाहिर वो बहुत ही नेक शख्स था। उसकी दोस्ती पर जितना फ़ख्र किया जाए कम था। हर सुख दुख में वो साथ खड़ा रहता था। मगर जब से उसके जहन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक़ी का भूत सवार हुआ था, मेरे जैसा सादा आशिक़ रसूल भी खौफज़दा हो गया था। उसने कई बार मुझे अपने घर आने की दावत भी दी, मगर मैं डर के मारे कभी भी आमादा न हुआ। हमेशा कोई बहाना बनाकर टाल देता। एक दिन मुझे किसी काम के सिलसिले में उसके मोहल्ले जाना हुआ। मैं अपना काम निपटा कर जा रहा था कि वह मुझे रास्ते में सामने से आता हुआ दिखाई दिया और उसने मुझे देख लिया। अब उसने मुझे कहा, घर चलो। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मुझे मजबूरन हाँ कहना पड़ा और मैं उसके साथ हो लिया। एक गली छोड़कर दूसरी गली में उसका घर था। वो मुझे बाहर रुकने का कहकर अपने घर में दाखिल हुआ और अंदर से ही बैठक का दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने का कहा। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो उसने मुझे बैठने को कहा। यह कहकर वापस घर में चला गया कि मैं चाय लेकर आता हूँ। मैंने बैठक पर एक ताराना नज़र डाली। दीवारों पर लब्बैक या रसूलुल्लाह के पोस्टर लगे हुए थे और कई मौलवी हजरात की तस्वीर भी लगी हुई थी। एक जगह दीवार पर कुरान पाक रखा हुआ था। मैंने सोचा ना जाने ये कब वापस आए, इसलिए कुरान पाक की जानिब बढ़ा कि थोड़ा सा पढ़ लूँ। मगर जब कुरान पाक को हाथ में उठाया तो यूँ लगा जैसे बरसों उससे हाथ नहीं लगाया गया हो और मुझे किसी का एक कौल याद आ गया। घरों में रखे कुरान पर जमी हुई धूल दिल पर जमी हुई स्याही को ज़ाहिर करती है। ग्लास में बाल। शाम ढलते ही काम काज से फारिग होकर
नहा धोकर खाना खाकर भाई कल्लू घर से बाहर आते गली के नुक्कड़ पर पीपल के दरख्त के नीचे बिछे हुए तख्त पर जा बैठते। कुछ यार दोस्त वाकिफ भी जमा हो जाते। भाई कल्लू बोतल निकालते और गिलास में उंडेल कर में नोशी का शुगल शुरू करते। घंटे डेढ़ घंटे में एक आध पब्बा ख़त्म करते। में नोशी क्या थी, बस शुगलबाजी थी। एक रोज़ गिलास का भगोर जायज़ा लेने के बाद दूसरा गिलास मंगवाया और शराब उसमें उंडेल कर पीने लगे। एक साहब ने वजह पूछी तो कहने लगे कि पहले वाले गिलास में बाल था। तो क्या हुआ, पूछने वाले ने कहा। भाई कल्लू आंखें दिखाकर बोले, अरे क्या तुम्हें नहीं मालूम तड़के हुए कप या गिलास में पीना मकरूह है। अफसानचे का उन्वान है धमकी। लॉकडाउन को एक हफ्ता गुजर चुका था। इस एक हफ्ते ने मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ असर छोड़े थे। कुछ लोग हद से ज़्यादा एहतियात पसंद हो गए थे और कुछ लोग बेपरवाह। कुछ तो ऐसे बन चुके थे जो नींद में भी हाथों को ऐसे रगड़ते जैसे सैनिटाइज़र लगा रहे हों, और कुछ ऐसे जो घर से बाहर निकलने पर भी मास्क ना लगाते। ऐसे ही लोगों में नजम का भी शुमार होता था। बराबर वाले मोहल्ले में आसिफ का घर था। वो हर रोज़ उससे मिलने ज़रूर जाता। दोनों घंटों गप लगाते और जब घड़ी 9 बजाती तभी वो उठता। उस दिन आसिफ की बीवी ने कहा कि अगर शादी कर लेते तो इस तरह इधर उधर वक्त बर्बाद ना करते। इस पर नजम बोला, भाभी अब तक कोई लड़की जची नहीं, वरना हमसफर बन चुकी होती। फिर मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी आज़ादी में मुखल हो। अरे मर्दों ने ही लड़कियों को बदनाम कर रखा है कि वो शौहरों को गुलाम बना लेती हैं, बेगम आसिफ बोली। आसिफ ने बेगम की बात को नज़रअंदाज करके कहा, कभी ये सोचा है कि शादी हॉल में लड़कियां इतना सच समझ कर क्यों आती हैं? क्योंकि स्टेट एजेंट प्लॉट का नक्शा देखता है तो आसपास के प्लॉट भी उसमें होते हैं। ये और बात है कि कुछ प्लॉट पहले से अलॉटेड होते हैं, कुछ कचरे से भरे और कुछ पर गैर कानूनी कब्जा होता है। अक्लमंद अपने प्लॉट के साथ दीगर अच्छे प्लॉट पर भी नज़र रखता है। शादी हाल में आंखें बंद करके जाना छोड़ दो, हम सफ़र फौरन मिल जाएगी, जिंदगी जन्नत बन जाएगी। बातें जारी थी कि आसिफ की बीवी ने कहा, ज़रा बात सुने। वो उठकर बीवी के पीछे पीछे अंदर वाले कमरे में चला गया। नजम जाने के लिए उठ गया, तभी अंदर से बेगम आसिफ की दबी दबी सी आवाज़ आई, घड़ी देखो 10 बजने वाले हैं, बेसन पर इतने बर्तन जमा है, अगर धोने में देर किया तो मैं अस्पताल फ़ोन करके कहूँगी कि मेरे शौहर को कोरोना हो गया है, सुबह से मुसलसल खांस रहे हैं।